Hello friends, welcome back to our channel Creativity. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Okay, today's topic is personality. The first topic of the second unit. So there we have to learn about what does the personality means and what are the characteristics of a personality. So let us start with that. So first we have to know about the word personality. The word personality has been come from a Latin word which is persona. And what does means? A mask. Means the marks which have been weighed by a persons in different theater used to wear a mask to perform or to indicate or to show a character. So with that mask, this persona word has been come, and from that word personality word has been taken, so that a personality of a person uh, can be judged or can be known by with this different definitions. We will came to know what is the personality means. So the word personality has been defined in a numbers of way. Different persons have defined, different educational psychologists have defined personality in a different definition. So let us see the first definitions. Because a personality is a whole individuals, as we already know, the personality is something which a person's nature or characteristics has been shown. So the personalities can be, we can consider the personality as a whole person, which can be defined as the most characteristics integration of an individual structure. Individual structures as a whole, we can consider it as a personalities, or a mood of interest, different interest of a person, attitudes of a person's behavior and capacity of a person can be called as a personality. So apart from that also, different definitions have been given in terms of personality. What does it means? Let us see NL Moon's definitions, which has been which is talking about that personalities may be defined as the most characteristics integration of an individual structure. Same as this one, this definition same he have given. Here only the capacities, abilities and aptitudes has been included. Means here only the interest of a person, with the help of interest of a person, with the help of attitude of a person towards different particular thing, or the shown behavior, as psychology is the study of behavior, with the shown behavior, the capacity, the abilities and aptitude of a person shows his or her personality, how he is judging that particular situation, what type of thought he have given, or what is his thinking process, or individual structures, maybe the appearance part, or the modes of behavior, means how he is dealing to that problem or how he is handling that problem, so giving solutions to that problem. So this interest, attitude, abilities, capacity shows a personality of a person, means the marks or the nature of a person. With that, there are also other definitions which has been given by C.V. Good, who have given that the total psychological and social reaction of an individual, the synthesis of his subjective, emotional, and mental life can be called as a personality. Means a person's total psychological and social reaction, means how he is behaving. Means we already know that person. Sorry, psychology is something which is the study of behavior. So with that behavior we will came to know a person's in a better way. So it will include the psychological aspect of a person and the social aspect of a person, because we are a social animal. So to show our particular behavior we have to live in this society, and in societies we, in our different situations we show different we show different behaviors in our social reaction. So that also reflects our personality of an individual. So the mental and emotional aspect, the mental, how you are handling that situation, that will also show your personality, how you are dealing with that particular problem or dealing with that particular situation, how you are emotionally matured or not. So that particular thing will also shows a person's personality. For example, emotional maturity means a person's, as for example, जैसे कि एक बच्चा बच्चा का इमोशनल मैच्योरिटी, जैसे कि पहले क्या थे, एक बच्चे को अगर शॉपिंग मॉल में लेके गए हैं तो अगर उसको कुछ नहीं दिया पेरेंट्स ने, तो ही में क्राई एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज ही इज नॉट इमोशनली मैच्योर्ड इनफ. बट वही बच्चा बड़ा होके या फिर एडोलेसेंस पीरियड में या फिर जब भी वो बड़ा होके जाएगा, तो अगर पेरेंट्स ने कुछ खरीद के नहीं दिया, ही विल नॉट क्राई इनफॉर्म, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं लोगों के सामने ही विल नॉट do the drama और जो भी cry, तो because he have become an emotionally because emotionally matured हो गया है. So that also a
डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनालिटी। जो एडोलेसेंस में एक पर्सनालिटी डिफरेंट होता है, चाइल्डहुड पीरियड में पर्सनालिटी इज डिफरेंट, सो इट शोज द साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ओके, so let us move forward with the second slide, where we will look after the characteristics of personality. From the first characteristics, what it is, that personality is always a dynamic process. So what is a dynamic personality? What does it mean? ये dynamic persons personality वाले कैसे होते हैं? For example, जैसे कि they can or they have some extra qualities like creativity, or they think जैसे कि कुछ भी सोचना है तो वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, या फिर कुछ भी टारगेट किया है उसको कंप्लीट करते हैं, या फिर मोस्ट सक्सेसफुल या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, वी कैन से दैट अ पर्सनैलिटी इज ऑलवेज अ डायनामिक process. Okay, then the next characteristics is personality determines our thinking, reasoning and action. Yes, from our personality, or from for example, if you have met one person for the first time or second time, with his with the conversation you will able to realize what type of person he is, what his thinking is reflecting, what are his logical or reasoning abilities, or how he see things, or how positive or negative his thought is. So, or by the action he has taken, so all this will, thinking, reasoning and action will shows his personality. So that can also come under the characteristics of a personality. So the third characteristics is personality is both physical and psychological, means outer and inner. They are divided into two, means the personality is both physical and psychological. I will say about this in the second slides, where it has been divided into a different types of personalities, and different psychologists have divided on the basis of appearances also. There are different psychological characteristics, different on the basis of the appearance also. So a person have a outer personality, how he is, how his appearance is, how he is behaving. For example, inner personality is everyone's enjoy. uh, for example, if you are a teacher, so in a classroom you have to behave in a teacher, means as a teacher. Okay, because that is your outer personality, you have to show a personality as a teacher. For example, you are conducting a picnic or excursion and you are going with the students, so there is some kind of flexibility you can show by showing your inner personality, how you are handling situation, how you enjoy the situation with your students. So personality can be both physical and psychological, means the outer and inner personality, that the same personality, that same teacher is behaving in another way with in the home, घर में किसी और के तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं, so that is completely another behavior. So it is a combination of outer and inner personality. So the fourth number characteristics is personality develops through social interaction. Yes, with the help of social interaction, our personality develop. For example, महात्मा गांधी के बारे में भी देना चाहूंगी, हाउ ही इज पर्सनैलिटी इज, हाउ ही डील विद डील इन द सोसाइटीज, डिफरेंट पीपल्स, गाँव गाँव में जाके किस तरह से उन्होंने डील किया है, तो ही ऑल्सो शोज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. दैट्स वाई पीपल रिमेंबर हिम फॉर हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो, फॉर हिज वर्क ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, सोशल इंटरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल देना चाहूंगी. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव जैसे कि प्रेजेंटेशन दिया होगा कभी भी क्लासरूम में, तो या फिर स्टेज में कुछ टॉक दिया होगा, तो फर्स्ट डे यू हैव शोड अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, मीन्स वो पर्सनैलिटी, सोशल इंटरेक्शन आपका फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन आप यू आर नर्वस फॉर द फर्स्ट टाइम. सेकेंड टाइम अगेन उस गलती से या फिर जो भी है उससे आपने कुछ सीखा है, इट इज डेवलप्ड अगेन. देन थर्ड टाइम आपने स्टेज में गए हैं, देन अगेन योर कॉन्फिडेंस developed and you are fluent enough to deliver your speech. तो ये क्या है, with the help of social interaction in the last stage your personality has developed. So that will also come under the characteristics of personality. Let us move forward. The next characteristics is every personality has some uniqueness. Yes, there are जैसे कि मैं अलग हूँ, आपका पर्सनैलिटी अलग है. जैसे कि क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, सम आर इंजॉयबल, कोई बहुत अटेंटिव है क्लास में, बहुत सीरियस है, कोई कोई इतना इजी गोइंग है, सीरियस नहीं है अबाउट द स्टडी और एनीथिंग. सो every personality has some uniqueness in it. The next characteristics is personality has organized and integrated system. जैसे कि एक पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सकता है एंड इंटीग्रेटेड ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर थिंग्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैलेंसिंग पर्सनैलिटी, मीन्स यहाँ पे भी पर्सनैलिटी एम्स ऑफ डेवलपिंग द होल और टोटल ह्यूमन बीइंग. सो इस तरह का पर्सनैलिटी कैसा होता है, जैसे कि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड
होना ज़्यादा अच्छा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना पसंद करते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड मीन्स बैलेंसिंग आउट द सिचुएशन में जो भी सिचुएशन मिला उसको बैलेंस किस तरह से करना है, किस तरह से टोटल ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना है होल। तो इस तरह ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी का, मीन्स इट इज ऑर्गेनाइज्ड and integrated system. Integrated system we can develop as a whole. So the last characteristics is personality refers to the process of adjustment to our environment. Yes, पर्सनैलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। आपको जिस तरह का इन्वायरमेंट मिला है तो उस इन्वायरमेंट में किस तरह से एडजस्ट होना है, वो चीज एक पर्सन के डेवलप, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। घर में किस तरह से एडजस्ट करना है, या फिर भाई बहन है उनके साथ किस तरह से रहना है, मदर फादर के साथ, तो वो एक अलग पर्सनैलिटी आपका डेवलप करेगा। इन अ वर्किंग प्लेस इट विल डेवलप अनदर पर्सनैलिटी, इन अ प्रैक्टिकल फील्ड इट विल डेवलप अनदर पर्सनैलिटी। सो हर एक सिचुएशन में एडजस्टमेंट के हिसाब से और विद द एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट हमको मिलता है उसके चलते हमारा क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होता है। दैट्स व्हाई इट इज written as personality refers to the process of adjustment to our environment. So we have understood about the characteristics of personality. Now we have to see that there are different types has been given by different psychologists. I will not include all the classification because in the syllabus only we have to know about the characteristics of personality. But for the future reference, I will include the classification here. Means Sprengers has classified on the basis of different characteristics of a person, nature of a person. He had given different types of personality. Here are the types he have given. Number one is the theoretical personality. तो अ पर्सन, जैसे कि एक द थ्योरेटिकल पर्सन कैसा होता है, उसका इंटरेस्ट क्या क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड इंटरेस्ट ही हैव डिवाइडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो थ्योरेटिकल पर्सन कैसा होता है, जिसका थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी है तो वो कैसा होगा इंसान, ही विल बी इंटेलेक्चुअल, परस्यूट डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ को जानने का जो ट्रुथ जानना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बिलीव करता है, मीन इंटरेस्टेड एरिया मीन्स डिस्कवर ऑफ ट्रुथ, तो ये हो जाएगा थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी। तो वो वैसे वाले लोग इंटेलेक्चुअल परस्यूट एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देन द सेकंड टाइप ही हैव गिवन द इकोनॉमिक पर्सनैलिटी। तो इकोनॉमिक पर्सनैलिटी वाले कैसे होंगे, उनका इंटरेस्ट कैसा होगा, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होगा, मार्केटिंग ट्रांजेक्शन, मार्केट इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन फाउंड इन द इकोनॉमिक पर्सनैलिटी। तो इकोनॉमिक वाले पर्सनैलिटी के लोग ज्यादातर प्रैग्मेटिक्स मीन्स प्रैक्टिकल पे बिलीव करेंगे, प्रैक्टिकल थॉट में बिलीव करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में बिलीव करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लॉस, इनकम, इस तरह का उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। देन द नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक पर्सनैलिटी। तो एस्थेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग कैसे होते हैं, लवर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। फॉर एग्जाम्पल द पेंटर, हम लोग बोल सकते हैं पेंटर होते हैं, डिफरेंट फोटोग्राफर्स, तो उनका ज्यादातर इंटरेस्ट मीन्स ब्यूटी एंड आर्ट का किसी का भी इंटरेस्ट है तो वी कैन से हिम और हर इज एस्थेटिक पर्सनैलिटी टाइप। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि जिसका थ्योरेटिकल है उसका इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक है तो एस्थेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है। अ पर्सन कैन हैव ऑल ऑफ देम, मोर और लेस, सबका मोर और लेस कुछ ना कुछ यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो अपने साथ भी। तो सोशल पर्सनैलिटी कैसा होगा, उनका इंटरेस्ट कैसा होता है, ह्यूमन रिलेशन एंड अल्ट्रिज्म मीन्स ह्यूमन रिलेशन बिल्डिंग, जैसे कि किसी ने एनजीओ में ज्वाइन कर लिया है, ही लव्स टू डू सोशल एक्टिविटीज या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज जो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड है, डिफरेंट पर्सन के साथ रिलेटेड है, उस तरह का इंटरेस्ट उनमें होता है। पॉलिटिकल वाले कैसे होते हैं पर्सनैलिटी, दे हैव द इंटरेस्ट इन पावर एंड इन्फ्लुएंस, किस तरह से मीन्स लीडरशिप क्वालिटी किस तरह से शो करेंगे, किस तरह से पावर को यूज करेंगे या फिर पावर का यूटिलाइज करेंगे, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे टू अ लार्ज पॉपुलेशन। सो उनका इस तरह का पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का इस तरह से इंटरेस्ट रहता है। देन द लास्ट अकॉर्डिंग टू दिस द रिलीजियस वाले पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है अल्टीमेट मीनिंग एज यूनिटी इन द लाइफ इन टर्म्स ऑफ हाई पावर। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस वाले दे बिलीव इन गॉड, जो भी रिलीजियस टाइप का एक्टिविटीज है उनमें बिलीव करते हैं, किस तरह से हाई पावर को अचीव किया जाए, मैनिफेस्टेशन किया जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप, तो मेडिटेशन, इस तरह का कॉन्सेप्ट उन मीन्स कॉन्सेप्ट में वो लोग इंटरेस्ट ज्यादा रहते हैं। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन गिवन बाय स्प्रेंजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बहुत ही फेमस जंग क्लासिफिकेशन, एज वी ऑल नो कि उन्होंने 2 वे में क्लासिफाई किया था पर्सनैलिटी को। सो
यू कैन रिलेट विद दिस ऑल्सो। जब भी हम लोग क्लासीफाई पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऐसा लगता है ये तो मेरे अंदर भी है, थोड़ा बहुत सबके अंदर है। वी कैन नॉट जज हिम एज अ कंप्लीट, जैसे कि पॉलिटिकल टाइप का ही है कंप्लीट, पूरा सोशल टाइप ही है, हम लोग ऐसे किसी को नहीं बोल सकते हैं। एवरीवन हैज सम traits or some type of characteristics in him or her. So let us see the Jung's classification, what he has given. He have given two types. One is the extrovert. Extrovert वाले personality कैसे होते हैं? Who is social, practical होते हैं ज़्यादा, सोशल मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल होते हैं ज़्यादा, कन्वर्सेशन ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अपीयर अफेक्शनेट मीन्स किस तरह से अपीयर करेंगे, किस तरह से वो लोग अपीयरेंस मीन्स हाउ टू, किस तरह से आप कपड़ा को पहनेंगे, किस तरह से अपीयर करेंगे, सो ब्यूटी, आर्ट, ये सब कुछ भी उनमें रिफ्लेक्ट होता है ज़्यादा। कन्वर्सेशन मीन्स दे जैसे कि टॉक मोर या कन्वर्सेशन करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कन्वर्सेशन मीन्स ऑटोमेटिकली दे शो दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, एक्टिव होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लाइवली होते हैं। तो ये वाले पर्सनैलिटी आ गए एक्सट्रोवर्ट में। तो नेक्स्ट टाइप का क्या था? इंट्रोवर्ट उन्होंने दिया था, विच इज हु प्रीफर आइसोलेशन और कंपनी ऑफ फ्यू पीपल, जो इसका ऑपोजिट है। ये ज्यादा सोशल है तो ये लोग ज्यादा सोशल नहीं है, सो इट आर ऑपोजिट टू एक्सट्रोवर्ट। ये लोग थोड़ा शाई होते हैं, ज्यादा सोशल नहीं होना चाहते हैं, तो खुद में ही, या फिर ये लोग जैसे कि ये लोग डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज उनका अच्छा होता है, बोल सकते हैं। डिफरेंट आउट मीन्स टॉकेटिव होने से वो लोग डिफरेंट टॉक शो या फिर इस तरह का पार्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंट्रोवर्ट लोग किस तरह से होते हैं, जैसे कि राइटर हम लोग बोल सकते हैं। राइटर को क्या करना है? सिर्फ लिखना है। ही डोंट वांट एनी मीन्स कंपनी ऑफ फ्यू पीपल्स, ओनली ही प्रीफर कंपनी ऑफ फ्यू पीपल। तो राइटर होते हैं ज़्यादातर, तो वो वाले पर्सनैलिटी हम लोग देखते हैं। टॉक लेस, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फॉर्मल होते हैं। ये लोग इनफॉर्मल होते हैं ज़्यादा, तो ये लोग फॉर्मल होते हैं, लेस सोशल होते हैं, सो अपोजिट ऑफ एक्सट्रोवर्ट। तो हम लोग कंप्लीटली इंट्रोवर्ट एक पर्सन को भी नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बोथ के कॉम्बिनेशन भी हमको दिखाई देता है, एंड विच हैज बीन गिवन बाय एम्बीवर्ट टाइप बोलते हैं उसको। एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन को एम्बीवर्ट बोलते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे कि एक पर्सन सोशल भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करता है, फॉर्मल है, ठीक है, कंट्रोवर्सी सॉरी कन्वर्सेशन करना उसे अच्छा लगता है, लेकिन सम टाइम ही ऑल्सो प्रीफर आइसोलेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैन बी said as a ambivert, which has been given by आइसेंस। आइसेंस ने दिया था 1947। तो मेनली ज्यादातर जो पर्सनैलिटी हमको देखने को मिलता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, विच इज एम्बीवर्ट। ज्यादातर हमको ये वाला पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। सो उसके बाद हम लोग अगर इन अ शॉर्ट वे पर्सनैलिटी क्या है वो अगर हमको समझना है, तो लेट अस सी वर्ड बाय वर्ड कि पर्सनैलिटी का पूरा वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो परसेप्शन, पी कम्स फ्रॉम परसेप्शन कैपेसिटी, मीन्स किस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आप देखते हो या फिर एनालाइज करते हो with the help of sensory impressions, or we give a meaning to a particular situation that can be called as perception capacity. So p word का perception capacity हम समझ किस वे में हम लोग एक situation को, एक environment को हम लोगों ने किस तरह से हम लोग उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, तो वो एक पर्सन का पर्सनैलिटी का एक परसेप्शन कैपेसिटी भी होता है। देन इमोशनल मैच्योरिटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर में बोला था, मैच्योरिटी, हाउ यू आर हैंडलिंग वन सिचुएशन इन डिफरेंट पर्टिकुलर सिचुएशन, किस तरह से उस चीज को हैंडल कर रहे हो, वो आपका क्या शो करेगा? इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, उसके बाद आएगा रेस्पॉन्सिवनेस टू सिचुएशन। आप किस तरह से एक सिचुएशन को रेस्पॉन्स देते हो, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, या फिर आप किस तरह से उस चीज को डील करते हो, दैट विल आल्सो कम्स अंडर आर, व्हिच इज रेस्पॉन्सिवनेस टू सिचुएशन। कुछ भी गलत हुआ है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपका है तो वो आप लेते हो कि नहीं, तो वो आ जाएगा रेस्पॉन्सिवनेस टू सिचुएशन। देन सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशियबिलिटी, किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, सोशल हो कि नहीं, वो आ जाएगा पर्सनैलिटी का एस से। ऑर्गेनाइज, जो मैंने बोला, नीट एंड क्लीन रहना पसंद जिसको है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप्स करते हैं, जो दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर उसको हम ऑर्गेनाइज्ड समझ सकते हैं। एंड फॉर नॉट परमानेंट फ्लेक्सिबल, जो मैंने अभी बोला कि जो एक पर्सनैलिटी एक इंसान का होता है विद दैट इज नॉट परमानेंट। आज आप एक सिचुएशन में किस तरह से डील कर रहे हो, मे बी 2 years बैक उस सिचुएशन में आप और भी अच्छे से डील कर सकते हो, या फिर जो मैंने स्टेज का एग्जाम्पल दिया, और भी अच्छे से फ्लुएंट वे में आप स्पीकर बन सकते हो। सो our personality is not permanent, it is flexible on the basis of different environment. उसके बाद appearance,
ए से अपीयरेंस, जो मैंने बोला अपीयरेंस से भी एक पर्सन का किस तरह का पर्सनैलिटी है वो हमको मालूम पड़ सकता है। अपीयरेंस जैसे कि अपीयरेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, किस तरह से हम मतलब अपीयर कर रहे हैं, टॉल है, फैट है, ओल्ड है। उसके अलावा भी जॉयफुल किस तरह से, कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको हम लोग हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी बोलेंगे, कोई अगर जॉय कर रहा है तो मतलब हम उसको हैप्पी पर्सनैलिटी भी बोल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अपीयरेंस ऑल्सो वी कैन सी और वी कैन फाउंड आउट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो उसके बाद लीडरशिप फीलिंग को जो मैंने बोला, पावर, हाउ टू डील अ सिचुएशन, किस तरह से उस चीज को आगे लेके जाना है, हाउ टू सॉल्व दैट सिचुएशन, लीडरशिप क्वालिटी शो करना इन अ डिफरेंट पर्टिकुलर फील्ड, तो वो लीडरशिप फीलिंग आ जाएगा उसमें। पर्सनैलिटी दैट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड इंटीग्रेटेड मीन्स इंटीग्रेटिंग एज अ होल ह्यूमन डेवलपमेंट वी कैन से। पर्सनैलिटी को भी हम एक ह्यूमन, ऑल द ह्यूमन, जैसे कि कोई कोई पर्सन इंटीग्रेटेड वे में बिलीव करता है टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी एज अ होल। उसके बाद आएगा टी फॉर टेंडेंसीज, इम्पल्सेस, डिस्पोजिशन। तो ये वाले पर्सनैलिटी कैसे होते हैं, मीन्स टेंडेंसीज मीन्स साइकोपैथोलॉजिस्ट में या फिर एडिक्शन में, या फिर कुछ चीज आपने अपने फ्रेंड से सीखा है, उसका वो चीज एक्वायर कर लिया है, मीन्स वेरी शॉर्ट टर्म होते हैं दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। किसी से एक्वायर्ड करके, किसी का बोलने का तरीका आप लोगों ने कॉपी किया है, सो that can be come under this. And the last one is personality young, vital and unique. So this type of personalities can be come as, जैसे कि किस तरह से आप एक यूनिक वे में शो करते हैं आपका पर्सनैलिटी, एकदम यंग, लाइवलीहुड, मतलब आप खुश रहते हैं। कभी कभी देखते हैं हम ओल्ड एज में भी बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, दे शोज अ यंग पर्सनैलिटी, जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स में या फिर डिफरेंट चिल्ड्रन यंग में भी नहीं रहता है उस तरह का पर्सनैलिटी सब। तो वो हो जाएगा लाइवलीहुड या फिर लाइवली बिहेवियर, हैप्पी बिहेवियर, तो वो सब कुछ पर्सनैलिटी इसमें आ जाएगा लास्ट में। यंग, वाइटल एंड यूनिक। यूनिक मीन्स शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, किस तरह से डील करना है, किस तरह से हम क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। सो इट विल इन्वॉल्व द क्रिएटिविटी और एज वी हैव सेड द डायनामिक पर्सनैलिटीज। सो यही था डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटीज, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज, एंड इन शॉर्ट में भी हम लोगों ने समझ लिया है कि पर्सनैलिटी क्या होता है। तो आई होप वी कैन रिलेट विद दिस।